Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt Olive Board CGL pre-live mock test, which is available on the website of the Olive Board and also on the application of the Olive Board. I would highly suggest you to attempt it on the website because of the exam interface and although the exam pattern similar to the which you will get in the examination is similar to the Olive Board interface. So you guys attempt this particular mock test on the website of the Olive Board, and you guys also attempt this particular mock test and comment your score in the comment section, and subscribe the channel if you have not, and press the bell icon so you can get the notification of the latest video. I think this is going to be the last mock of the Olive Board prelims or Olive Board mocks. Like as we know, today is 5th of September, and after 7 days it will be going to 12th of September, which is the starting date of our CGL exam. So I think this is going to be the last Olive Board CGL pre live mock test. So let's see how it goes, and you guys also attempt this particular mock test and comment your score in the comment section, and also comment your score section wise, like in which section how many marks you have scored. So let's see how it goes. Start this particular mock test with the general awareness article 20 ठीक है. तो article 20 is related to the right to life के हिसाब से है, प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेक्शन नहीं. आर्टिकल 20 तो तुम्हारा उससे रिलेटेड है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज नहीं है, नहीं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सी का वन, एक ही ऑप्शन है, सी का 2 सॉरी, नहीं, सी का 3, 2, 4, ये 20 बी सॉरी बी का 1 है ना, बी का वन ठीक है. 22 का हमारा क्या कह रहा है, 22, 20, 21, 22 तुम्हारा ये कह रहा है अरेस्ट एंड डिटेंशन. 22 का ए का 4, बी का 1, ये वाला ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वामित्व स्कीम. ओके, स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजीज इन विलेज एरिया. सही है, ये तो सही है. इट वाज लॉन्च बाय द प्रधान मिनिस्टर ऑन अप्रैल 24, 2021 ऑन नेशनल पंचायती राज डे. ये भी सही है. स्वामित्व प्रोवाइड्स लीगल ओनरशिप ऑफ रूरल रेजिडेंस लैंड अंडर यूजिंग ड्रोन बेस्ड सर्वे. ये भी सही है. द स्वामित्व इम्प्लीमेंटेड द सर्वे ऑफ इंडिया. फोर्थ गलत हो गया. पहला कौन कौन से थे, फर्स्ट सेकंड नहीं, पहला बार देखो, ये थर्ड वाला तो सही है, थर्ड सही है, फर्स्ट सही है. एक सेकंड देखो, पहला सही है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग बाय इम्प्रोवाइज. पहला तो सही है, पहला सही ठीक. ये ओके. उसके बाद देखो, पहला के बाद दूसरा सही है या तीसरा देखो, तीसरा चेक कर लो. इंस्ट्रूमेंट फॉर लीगल ओनरशिप ऑफ रूरल रेजिस्टेंस, ये तो तीसरा गलत हो गया. तीसरा गलत, पहला और दूसरा. फोर्थ गलत, फोर्थ भी गलत है क्या, फोर्थ चेक कर लो. स्वामित्व स्कीम यूजिंग, फोर्थ तो गलत है ही, तो ये वाला ऑप्शन खत्म. फर्स्ट और सेकंड सही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच इज विच स्पोर्ट टर्म इज चक्कर यूज्ड टू डिनोट अ पीरियड ऑफ प्ले. चक्कर देखो, हॉकी में ऐसा चक्कर सुना नहीं. स्क्वैश अब कंफर्म नहीं है तो छोड़ दो इसको. whom the following South Indian country did PM Narendra visited during his 5 nation tour in July 2025. ओके, ब्राजील गए थे, अर्जेंटीना भी गए थे, ब्राजील तो गए थे, ये तो कंफर्म है. ब्राजील गए थे, अर्जेंटीना भी गए थे मेरे हिसाब से शायद. ब्राजील तो गए थे. सेकंड तो कंफर्म है, सेकंड थर्ड ठीक है, सेकंड थर्ड और पेरू, चील, अर्जेंटीना. सेकंड और थर्ड मेरे हिसाब से सही है. इसको मार्क पर रिव्यू कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं. थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो कर रहे हो पेपर. नेक्स्ट, इसमें क्या है, which of the following read the following statement regarding the factor that determine the climate of India. Himalayan mountains act as a climate divide, protect the subcontinent from the cold northern winds and trapping monsoon winds. फर्स्ट तो सही है. दूसरा, इंटीरियर regions like Delhi experience an extreme climate with high seasonal variation due to their distance from the moderating influence of the sea. सही है. And the region of India lying north of the Tropic of Cancer falls in the tropical zone and experience a small annual range of temperature. Region of India lying north of the Tropic of Cancer experience small annual range of temperature. ये गलत हो गया. तीसरा वाला गलत हो गया. तीसरा गलत, फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया. सही है. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, with reference to the Poila Vaisakh, ठीक है, it marks the beginning of the Bengali New Year and it is celebrated in regions like West Bengal and Bangladesh. ये तो सही है. उसके बाद wearing traditional Bengali clothing, praying for blessing and earning those with traditional Rangoli style called Aipan are important aspects. सही है. A key commercial tradition of this day is the opening of new financial account books known as हाल खट्टा. ABC तीनों सही है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल खट्टा.
Which of the following stadium are the Winston 2025 honors नहीं मालूम. विराट कोहली is the name the leading men's cricketer of the year. स्मृति मंदाना name the leading women's. स्मृति बाबा तो सही है, सेकंड तो सही है. निकोलस पूरन name the leading T20 cricketer of the year. सेकंड और थर्ड सही है मेरे हिसाब से, फर्स्ट वाला गलत हो गया. फर्स्ट वाला लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड विराट कोहली कहाँ है? विराट कोहली है क्या? लेकिन 2025 में आज तक तो विराट कोहली का कुछ हुआ नहीं है. मेरे हिसाब से पहला वाला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा होना चाहिए. इसको भी मार्क पर रिव्यू कर देता हूँ, बाद में चेक करूंगा. अगला पेत्रा दोरा. ओके, पेत्रा दोरा तो ये है, वो है क्या बोलते हैं, लेटेस्ट नहीं, फ्लोरल पैटर्न्स. पेत्रा दोरा तो यही है. हाँ, अ परफॉर्मिंग ऑन लेटेस्ट स्क्रीन ऑफन विद द ज्योमेट्रिकल. पेत्रा दोरा यही है. ए का फोर एक ही ऑप्शन है, खत्म, यहीं से आंसर हो गया. ठीक है, इसको हिंदी में बस एक बार कर लें, हिंदी में पता चल जाएगा मुझे. पेत्रा दोरा का मतलब है एक चित्र सजावटी जाली स्क्रीन, एक दूसरे से जुड़े हुए पच्चरों के आकार को ब्लैक नहीं फूल पत्ती से जो सजाते हैं ना, उसको बोलते हैं. ठीक है, ये सही है. वॉइजर्स ये हो गया. सी का वन, सी का थ्री क्या है? सी का थ्री, बी का टू, जाली यही है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. अगला, विद रेफरेंस टू द कैबिनेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कैबिनेट मिशन इन फरवरी 1946. सही है. हाई पावर्ड मिशन ऑफ फाइव ब्रिटिश कैबिनेट मिशन. हाई पावर फाइव ब्रिटिश कैबिनेट मिशन नहीं था इसमें. बी गलत हो गया. बी गलत. ठीक है. द फाइंड आउट वेज एंड मीन्स फॉर अ नेगोशिएटेड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया. नहीं, ये भी गलत. ए, ट्रांसफर ऑफ पावर तो माउंटबेटन प्लान से. ए सही है ओनली. Yakshigan is a traditional theatre form from Karnataka that combines dance, music, and elaborate costumes to depict stories from the epics and Purans. सही है, from the epics and Purans. ठीक है, ये तो सही है. नेक्स्ट, भांड पत्थर जात्रा a vocal theatre form from the in known from its inclusion of the Lavani dance form. तो सी भी सही है, ए सही है, सी सही है. ठीक है, भांड पत्थर is a strategical theatre form from Kashmir which blend music, dance, mimicry to comments on social issues. भी तो सही लग रहा है मेरे को. यात्रा, डोल यात्रा, कांग यात्रा, ये गलत हो गया. सी गलत हो गया मेरे हिसाब से. सी गलत, ए और बी सही है. नेक्स्ट अगला, इसमें क्या है? द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ इंडिया. सही है. द वाइस इज द सुपीरियर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड आल्सो डिस्चार्ज फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ अ वैकेंसी इन दैट ऑफिस. बोथ ए एंड टी एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यही सही है. नेक्स्ट अगला, कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल. इट इज प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग initiative for rural youth from poor families. सही है. इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल लाइब्रेरी एनआरएलएम. सही है. इट वाज लॉन्च बाय, ये तीसरा वाला कंफर्म नहीं हूँ मैं. द स्कीम इज टू ओपन टू ऑल यूथ इन रूरल एरिया रिगार्डलेस ऑफ देयर फैमिली. फोर्थ गलत हो गया. तो ये ऑप्शन गया, येलो में फर्स्ट एंड थर्ड, तो अपने आप थर्ड सही हो गया. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज, धर्म समाज, प्रार्थना समाज. प्रार्थनानंद आठवां राम पंडूराम हो गया, तो डी का तो थ्री हो गया. तो एक ही ऑप्शन है, खत्म. ठीक है, ब्रह्म समाज तुम्हारा इससे हो ही गया, राजा राम मोहन से, ये भी कंफर्म हो गया, वेरीफाई हो गया. चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर बाय ओवरथ्रोइंग द नंद डायनेस्टी. सही है. Megasthenes agreed ambassador wrote the Indica providing a detailed account on the reign of the customer. both A and 2 सही है. A and B सही है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोक सभा एंड नॉट इन द राज्यसभा, दैट टू विद द प्रायर अप्रूवल एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. सही है. After being passed by the Lok Sabha, the bill got to the Rajya Sabha. Rajya Sabha had 14 days to its disposal for consideration report. सही है. The Rajya Sabha can reject the money bill if they feel that. नहीं, थर्ड वाला गलत हो गया. थर्ड गलत, फर्स्ट और सेकंड सही. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Identify the correct statement among the following. The roundness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration produced. Frequency is directly proportional to twice the number of oscillations. नहीं, frequency determines the loudness of the sound. The number of oscillations per second is amplitude. ये सही है. Next, per second is known as. Endemic species are those species of plants or animals which are found exclusively in a particular area. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone or state or a country. एक सेकेंड. A particular type का जंतु पौधा किसी क्षेत्र राज्य का स्थानीय हो सकता है. ये सही है. एंडेमिक स्पीशीज दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. एक सेकेंड बोलना. स्थानीय प्रजातियों पौधों और जंतुओं में भी प्रजातियां हैं. तो बस खत्म. वो तो एंड भी सही है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? फटाक से हो जाना भाई. अगला क्या कह रहा है? द कैश रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिटेड कमर्शियल रिक्वायर्ड टू होल्ड एज लिक्विड कैश विद themselves. सही है. स्टैट्यूटरी is the minimum percentage of deposit that a commercial bank has to maintain in the form of liquid asset like cash, gold or current security. सही है. The repo rate is the interest at which the RBI borrows fund from the. नहीं, ये गलत हो गया. थर्ड तो गलत हो गया. थर्ड गलत. फर्स्ट सेकंड ओनली सेकंड इज सच ट्रू. सॉरी, ये तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है ना. फर्स्ट वाला तो गलत हो गया. नेट इनविजिबल इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ
Export and the value of import of invisibles of a country in a given period of includes क्या services transfer, net invisibles, services transfers, flow of income. कंफर्म नहीं है, छोड़ो इसको, बाद में करेंगे. इसरो 6 नहीं मालूम इसरो के बारे में. विजियम इंटरनल दिवंगो मल्टीपल सीपोर्ट इज नहीं मालूम, इट नहीं मालूम. अकॉर्डिंग टू 2011 41.16% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिविंग इन द सिटी. सही है, ये तो सही है. 68 था समथिंग, हाँ नहीं नहीं 68 था ना, ये गलत हो गया. इलेक्ट्रिसिटी रेट 70 इम्प्रूव टू 74.04 इन 2011. बी तो सही है. अकॉर्डिंग टू 41 कहाँ से 59, हाँ सही है. बोथ 1 and 2 सही है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटक से आ जाओ. इसका क्या है, नाथुला पास लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, इट कनेक्ट्स इंडिया विद तिब्बत ऑटोनोमस. सही है. जोजिला पास जम्मू कश्मीर, इट इज अबाउट कम्बिल. सही है. रोहतांग पास कुल्लू वैली से स्पीति लाहौल स्पीति वाली को. तीसरा सही है. इनकरेक्ट कौन सा है, तीसरा सही है. वारालच्चा पास सिटेड इन द हिमाचल प्रदेश, जांस्कर एंड दिस. देखो नाथुला पास तो सही है मेरे हिसाब से, रोहतांग पास भी सही है. नाथुला रोहतांग दो तो सही है, 1 और 3 तो सही है. जोजिला पास, जोजिला गलत है मेरे हिसाब से. कश्मीर और लद्दाख को जोजिला नहीं. 12 लाख फॉर स्टूडेंट इज एक्सचेंज कंपनी वन लाहौल स्पीति. ये फोर्थ गलत हो गया, सॉरी फोर्थ गलत हो गया, फोर्थ फोर्थ. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10th 5 year प्लान. ठीक है, 2000 ज्यादा प्लान हैड एन इंडिकेट टारगेट ऑफ एन 8% जीडीपी ग्रोथ. पहला तो गलती हो गया, पहला गलत हो गया तो अपने आप से खत्म हो गया. 8% का नहीं था, 7.8 समथिंग कुछ था. हु इज द ऑथर द वाइट टाइगर बॉर्न द मैन पकड़ स्टूडेंट. नहीं मालूम. सक्सेसिव नहीं मालूम. ये हो गया. उसके बाद आ जाओ इंग्लिश में. Even though the hall was decorated with expensive and requested, it was a how can we take advantage of waiting. Waiting, ठीक है. Even though the hall was decorated with expensive and considered taste, it was a cold shelter. I guess warmth comes from the atmosphere, not with the place. It's like living in a mansion, but not at all. All job applicants were quiet and counting seconds while looking at either detail, ceiling, or their polished shoes. A job interview should not be like attending a funeral, but an opportunity to meet people. I guess it's like shopping at the local market, going to school, attending church, or walking your dog. Everyone was anxious, but one who was strangely happy and excited. Waiting is always boring, but it may be a great opportunity to improve. You can spend your time making a mind map of your actions or future. It may be an opportunity to judge the actions of others and be we can do our budget and plan our. It may be transition time to develop as we spend. It may be a terrific chance to develop as we can spend our time creating a vision board of our deeds. ठीक है. I suppose everything can be taken in. It all depends upon the person. Mr. Peter Phillips, please, Mr. Phillips, you are next. You may go in now. They are waiting for you, sir. The receptionist, Peter, a recently law graduated student and future lawyer, made his lawyer in the Peter. ठीक है. तो मेरे हिसाब से थर्ड वाली सही है. नेक्स्ट. It may be terrific chance. Terrific. Which one of the following describes Peter perfectly? A judge, the interviewer, recently law graduate. Next. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है which one of the following is was not done by the job applicant while awaiting their turn. Discussing the job profile among one another, glancing at the interior ceiling of the house. सही है. Staring at the polished shoes, polished shoe की तरफ भी देख रहा है, डिटेल सीलिंग की तरफ भी देख रहा है. Being quiet and calculating time, ये सही है. नेक्स्ट. काउंटिंग सेकंड सही, काउंटिंग टाइम भी है. Although job interviews may be embarrassing, it felt relaxed and willing to begin as soon as possible. ठीक है. तो क्या है इसमें, क्या बोल embarrassing का क्या है, एंटोनिम enjoyable. इंडस्ट्री ट्रबलिंग नहीं, आंसर enjoyable. अगला. I guess it's like shopping at the local market, going to school, attending church, or walking your dog. Compound complex, simplex compound. I guess ठीक है. It is like shopping at the local market, going to school, attending. तो ये तो कंपाउंड है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल तो वही है, कॉम्प्लेक्स वही. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है मेरे हिसाब से. नेक्स्ट. बाकी इसको भी मार्क पर भी करते हैं, बाद में देखेंगे. अगला. द कोर्स प्रोवाइड्स एन comprehensive overview of comprehensive holistically. Next. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, the manager was extremely impressed with the innovative marketing plan which the two new interns had developed. Which. Next. अगला. The team captain said that let us review the game footage tomorrow morning to identify our mistake and play. Requested तो नहीं करेगा, propose भी नहीं करेगा. said that में proposed होगा, तो proposed that they should review the game footage the next morning to identify their mistake and plan a better. सही है. Next. Next morning, tomorrow नहीं हुआ. Next. अगला. All the necessary arrangement for the grand wedding will have been made by the event planners. The event planners will
will have to make, will have to make, will have made होगा ना, हाँ will have made all the by the next weekend, सही है। अगला, the choose the antonym of the imbroglio. Simplicity, tenacity, altercation, simplicity, simplicity दिख रहा है मेरे हिसाब से, tenacity, portrait, imbroglio, simplicity सही है। Next अगला क्वेश्चन, Veer, who wrote this profoundly moving and critically acclaimed novel that explores the complex theme of the identity and belonging in modern society? ठीक है, तो by whom होगा, by whom was this, by whom was this, by whom was this profoundly critical novel that explores the complex themes of identity? Claiming by whom, written होगा ना लास्ट में, written. Next, by whom this, by whom was this next. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है वन हु accompanies a young lady to public places. chaperon, coxswain, ward, ingrate, chaperon नहीं मालूम भाई, ये चीज नहीं मालूम। अपीजमेंट सही है। एसेंट्रिसिटी ये गलत होगी, डबल सी होगा। नेक्स्ट, कोरियोग्राफी सही है। समनम बुलिस्ट भी सही है। नेक्स्ट, बुलिज्म। गायनाकोलॉजिस्ट अब फर्स्ट वन विद टू, तो मोनोगामी नहीं है, पॉलीगामी भी नहीं है, पॉलीएंट्रिस्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नॉइज फ्रॉम द सिटी स्ट्रीट वाज इंसेसेंट, इंसेसेंट, INCESSANT, इंसेसेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अरे बढ़ जा भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस ठीक है। द कॉस्मोस विद इट्स मिस्ट्री गवर्न बाय इम्यूटेबल लॉज ऑफ पोएटिक प्रिसीजन स्टैगर्ड हर इमेजिनेशन, ठीक है। बाई 15, तो पी से तो नहीं शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है। बाई 15 स्टैगर्ड, she had mastered her mathematics, which she supplemented with an ardent love of poetry, further to offer her in the way of higher education. No institution, not in the island, not on the globe, staggered her imagination, not on the globe, had anything. Okay, तो S से शुरू होगा क्या? S को देखो, S क्या है? No, staggered her imagination. The cosmos with its mystery, governed by the immutable law of poetic precision, staggered her imagination. No institution, not on the island, not on the globe, had anything which she supplemented with an ardent love of poetry. By 15, she had mastered further while an ardent love of poetry, further to offer her in the way of language. She for a woman. By 15, imagination. Okay, and so at the 17, by she had mastered. By 15, she had mastered, and so तो लास्ट में पी आएगा, सबसे लास्ट में पी आएगा, तो आर से शुरू होगा, खत्म। फर्दर टू इमेजिनेशन, फर्दर टू ऑफर हर इन द वे ऑफ द हायर इमेजिनेशन। उसके बाद आ जाएगा तो नॉट इंस्टीट्यूशन, नॉट हैड एनीथिंग, क्यू विच सी सप्लीमेंटेड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया हैज हैड अ वाइब्रेंट कैफे कल्चर ऑफ फॉर ईयर्स, बट it has been largely restricted to big cities where homegrown specialty and international coffee chains dominated the market. Mr. Singh is among a crop of young entrepreneurs who are benefited from a wave of specialty coffee consumption in small. However, तो 3 से तो शुरू होगा नहीं, 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, सीधी सी बात है, 2 से होगा, 2 के बाद 4 आएगा, बनाएगा, बस ये देख लो। Mr. Singh is among a crop of young entrepreneurs who are benefiting from a wave of specialty coffee consumption in small north and coffee owners say more Indians are now willing to pay more for coffee that's roasted in smaller batches and customized as per their. However, post-COVID, several tiers 2 cities are also being in a boom in it. तो 3 के बाद 4, तो 2 1 3 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन, इन रेगुलर सेशन psychologist can closely observe and counsel the participant in a regular session. A psychologist can closely observe and counsel the participant. The act of drawing or coloring is not a test for creativity, but a tool to express emotions that lie buried deeply. Deep नहीं, deeply. एडवर्ब चाहिए यहाँ पे, अगला,
रेशमी ठीक है, रेशमा मान लेता हूँ। रेशमा कुड नॉट एडजस्ट टू द न्यू स्कूल एंड दस हर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज्ड। कुड नॉट एडजस्टेड नहीं, हैड नॉट एडजस्टेड टू द न्यू स्कूल एंड दस हर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज्ड रैपिडली, ठीक है। कुड नॉट गलत हो गया यहाँ पे, कुड नॉट नहीं हो सकता। अगला, द सीरीज वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड, merely least less appropriate. The series was one of the more anticipated नहीं होगा, one of the least anticipated climate television for the last few years. The series was one of the least anticipated cinematic television events for the last few years. अब merely anticipated, least, less, one of the most होना चाहिए मेरे हिसाब से। नो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से तो फिर तो लीस्ट ही आना चाहिए। नेक्स्ट अगला, विगर ऑफ द स्पीच, हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज सिमिली है भाई, सीधी सी बात है। नेक्स्ट अगला, bite off more than one can chew. See, he bite more than he can chew, or नहीं, I bite off more than नहीं, so they bite off more than they could chew because they had too many candies नहीं, several project वाला ये सही है। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The scientist declared that by the next decade her team would have been, the scientist said by the next decade सही है। My team will, तो will have है, तो will have, would have का will have, will have, would have नहीं, would be conducting, will be, would have been conducting on over the 20 years. ये चीज समझना। said declared that by the next, said that by the next decade her team नहीं, my team will have been conducting ground, ये सही है, will have been। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्लेंट, कॉम्प्लियांट, ओके, कॉम्प्लियांट, ओबीडियंट, रिजिड, ऑब्स्टिनेट, ओबीडियंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड एन इजी टास्क नहीं, कम ऑन टू गेट डन विद द जॉब, कम टू द पॉइंट, गेट डन विद, कम अप टू एक्सपेक्टेशन, कट द मस्टर्ड एन इजी, कट द मस्टर्ड नहीं, ये गलत हो गया, कम टू द पॉइंट, कट द मस्टर्ड, गेट डन विद द जॉब इन हैंड नहीं, कम अप टू एक्सपेक्टेशन, ये सही है, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, अच्छा स्पेस में क्या है? इनपुट ग्रुप डस्ट हंट, वर्ल्ड फ्रेश वॉज, ठीक है। तो इनपुट क्या है? इनपुट इन्होंने क्या किया? घोस्ट रेट दिस, तो घोस्ट में इन्होंने क्या किया? ए का बी कर दिया, आर का एस कर दिया, टी का यू कर दिया। उसके बाद क्या, फिर उसका अगला क्या कर दिया इन्होंने? ए के बाद हमारा कौन सा है? ए के बाद आएगा डी, डी के बाद ई बी एस टी, खत्म। एग्जाम्पल इसके बाद इन्होंने इसमें यही कर दिया। तो बोल रहा है कि इसका क्या होगा? तो इसका सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ, सबसे बड़ा कौन सा? जी डी एच ई एफ, टेस्ट से शुरू होगा, तो ई वी ई वी ई वी टी यू, ई वी टी यू, ई वी टी यू, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? डी के बाद एफ, एफ के बाद जी से शुरू होना चाहिए, जी, जी से शुरू हुआ, जी से एफ टी आई आ गया, ठीक है। ये डी हो गया, ये हट गया, डी, डी एफ, एफ के बाद जी आएगा, जी से एच, एच से शुरू होना चाहिए, एच एस होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, एच एस, एच एस के बाद ओ पी, तो ये वाला क्वेश्चन खत्म, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रोड, रोड, क्योंकि 18, 5, 23, 7, 5, 12, तो ये 26, 3, 29, 29 - 5, 24, 24 इक्वल टू एक्स से शुरू, ठीक है। लास्ट वाला देखो, डी का उल्टा, डी -2, 5 - 2, तो 22 - 2, तो एक्स वी, लास्ट में वी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? अगला क्वेश्चन कह रहा है रोल नंबर एंडिंग विद इंडिविजुअल नंबर बिलोंग टू, एंडिंग विद द किससे? इवन नंबर, ठीक है। इवन से अगर है तो वो बैच 1 में जाएंगे, और डिजिट से हैं तो वो बैच 2 में जाएंगे। आइडेंटिफाई रोल नंबर फॉर द बैच 1 एंड बैच 2, तो बैच 1 में मेरा इवन आना चाहिए, एक ही है, और बैच 2 में ऑड, खत्म, यहीं से शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन बी कॉम विद 58% एंड एमबीए इन फाइनेंस, ठीक है। एक्सपीरियंस 1.5 साल का इन प्राइवेट बैंक, एज 24 साल है, विलिंग टू वर्क इन प्रोवेटरी लोन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोजीशन, मिनिमम 25 साल चाहिए, मैक्सिमम एज 32, ठीक है। एजुकेशन क्लास फ्रॉम द, ठीक है, मिनिमम दिस, तो प्रेफरेंस विलिंग टू वर्क, ठीक है, ये हो गया। तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन ही नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं, कैंडिडेट नॉट टू बी सिलेक्टेड, क्योंकि उसमें उसकी एज ही खत्म हो गई, एज ही खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मिनिमम 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 मार्क्स ये है मैक्सिमम, ठीक है, खत्म। अगला, एवेल्यूट दिस, हाँ, 13 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा? 13 एकम 13, कितना बचा? 7 बचा, 72, 13 बचा, 65, 65 और 7 बचा, 65, 11 बचा, 11 आया, यहाँ से 11 आया, 11 को ना 55, 55 + 9 कितना आया? 64, करेक्ट। 64 को
डिवाइड करो 13 से, 12 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे से, इन अकॉर्डिंग कॉन्टेस्ट लीडर बोर्ड रवि इज रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। तो रवि के ऊपर 16 लोग बैठे हैं एंड 21st, तो रवि के नीचे 20 लोग बैठे हैं। वन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, 21 20 20 16 36 37 37 लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी का 400 टी का स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया, 19 का स्क्वायर हो गया, 18 17 का स्क्वायर ये होना चाहिए था, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन recent past Indian hockey team has lost most of the matches in international hockey tournament. The most successful coaches in Indian club history tournament are from European countries. In most of the European countries, hockey is more popular sport than country. From the above subject, which of the following? It can be definitely concluded that the most European countries are successful at hockey. नहीं, in India cricket is more popular. नहीं, cricket कहाँ से आ गया, पहला वाला गलत हो जाएगा। It can be definitely concluded that in recent past coaches of Indian hockey club teams were not from Europe, गलत। It can be concluded that the more popular a sport, the better the chance of producing a successful coach and that is ये तो कंफर्म हो गया भाई, क्योंकि वो यही बात ही कह रहा है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड रीगल रीजनल इज इक्वल टू रीजनल, रीगल कह रहा हूँ मैं भी। 12 2 14 ठीक है, 1 2 3 और 14 2 16 15 2 17 9 2 9 2 11, एक सेकंड ना, 15 2 17 17 के बाद क्या किया इन्होंने, आर एस, ओके आर एस ई एफ जी एच और आई जे। तो इसमें भी कितना है, 4 4 8 है ना। तो ई के बाद जी नहीं नहीं, इसमें इन्होंने क्या किया था, दो दो ऐड कर रहे थे ना, 12 2 14। तो इसमें ई 5 2 7 7 से जी से शुरू हो गया, 18 2 20 जी टी के खत्म, जी टी के आर से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 4 मिनट रह गए। महेंद्र सिंह ए बी सी ए बी सी ए बी नहीं, 3 3 6 6 3 9 9 4 13 13 13 और 3 16। तो 4 4 का मेरे हिसाब से ग्रुप बनेगा, ए बी सी डैश ए बी डैश सी डैश ए बी सी, उसके बाद लास्ट में ए बी सी सी। मेरे हिसाब से ए बी सी सी डैश ए बी सी सी डैश ए नहीं सी सी ए बी नहीं ए बी सी ए नहीं नहीं ए बी सी सी सही है, ए बी बी सी ठीक है। तो सी आ गया, बी आ गया, सी बी मेरे हिसाब से सही है। तो उसके ए बी सी सी ए बी सी, उसके बाद ए बी सी और ए बी सी सही है। तो सी बी आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे से, राधा wanted to rent a book from the library. She started from her house and went 11 किलोमीटर to the east, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, and then turn left and she moved 7 किलोमीटर, ठीक है। then turn right and walk 5 किलोमीटर, ठीक है। then she went 5 किलोमीटर south, ठीक है, to reach the Bermuda. In which direction is the library with respect to her house? North east, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन, लाइब्रेरी, एवरी मंथ अ पर्सन सेव 1600 मोर देन द सेविंग। मान लो सेविंग एक्स है तो उससे एक्स प्लस 1600 उसको सेव करता है, ठीक है। एवरी पर्सन मस्ट सेव द सेविंग ऑफ हिज प्रीवियस मंथ। पिछले महीने में अगर एक्स थी तो इस साल इस महीने में एक्स प्लस 1600। इफ ही सेव्स अ टोटल ऑफ फ्रॉम जनवरी टू जनवरी 15, मतलब टोटल 12 महीने में वो कितना, पहली एक्स फिर उसके बाद एक्स प्लस 1600, करेक्ट, ऐसे ऐसे करते जाता है, ठीक यही हुआ। तो अगर मेरा, तो एन प्लस 12 11 11 इंटू 16 1600 इज इक्वल टू 2x इंटू 6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 36,000, 3,60,000, ठीक। 6 60,000 60,000 2 800 30,000 30,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8800 8800 माइनस कर दो इसमें से, 0 0 10 में से 8 गई 2 गई, 29 माइनस 21 21,200, ये गया 21,200 21,200। हाउ मच डिड ही शेव इन द जनवरी 2015, 21,200। आंसर। अगला क्वेश्चन, जे 10 10 था 17 17 7 24 17 24 24 और 7 31 31 31 7 5 12 7 5 12 12 आ गया। लास्ट में देखो पी 16 16 7 23 23 7 30 7 4 11 11 7 18 लास्ट में आ रहेगा, लास्ट में आ रहेगा, दो ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये देखो 13 13 7 20 20 7 27 प्लस 8 8 7 15 15 लास्ट में हो गया, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बटरफ्लाई कोकून एग वॉर्म। सबसे पहले तो बटरफ्लाई तो सबसे लास्ट में बनेगी, सबसे लास्ट में बटरफ्लाई बनेगी, 3 4 2 एग से पहले एग, एग से फिर वॉर्म बनेगा, वॉर्म से कोकून बनेगा, कोकून से चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऑल प्रिटी आर ब्यूटीफुल, ऑल प्रिटी आर ब्यूटीफुल, ठीक है, एंड नो अगली इज ब्यूटीफुल, नो अगली इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसने क्या बोला, विच करेक्ट है, सम अगली इज प्रिटी, सम अगली इज प्रिटी, नहीं, ऑल ब्यूटीफुल इज नॉट प्रिटी, गलत, नो प्रिटी इज अगली,
सही है। नो प्रिटी इज अर्ली। अगला क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलीशा डैश 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 हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स डैश व्हिच आर एंड दिस देयर नेम्स एंड देयर फ्रूट डू नॉट हैव स्टार्ट विद द सेम लेटर। ओह सॉरी, इसने क्या बोला? ठीक है, अलीशा नीदर बनाना। पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा ए अलीशा, बेला, गुआवा, गौरव, किया, ओमी। ठीक है, ये हो गया। तो ए, इसने क्या बोला? अलीशा अलीशा हैज नाइदर बनाना और गुआवा। तो अलीशा के पास बनाना नहीं आएगा, गुआवा नहीं आएगा, बनीना बनाना नहीं आएगा, गुआवा नहीं आएगा, एप्पल नहीं आया, तो कीवी आएगा या ऑरेंज आएगा। तो कीवी और ऑरेंज। ठीक है, ये हो गया। एक दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। उसके बाद गौरव है जो ऑरेंज, अगर गौरव के पास ऑरेंज है तो ऑब्वियसली इसके पास कीवी आ गई। ठीक है, ठीक है। और बेला डिड नॉट हैड गुआवा, तो बेला के पास अगर गुआवा नहीं आएगा, बेला के पास गुआवा नहीं आएगा, बनाना नहीं आएगा, तो कीवी आ सकता, कीवी भी नहीं आएगा। बेला, गुआवा, बनाना, गुआवा, कीवी और ऑरेंज भी चला गया, तो एप्पल आ गया यहाँ पे। और कीवी, ऑरेंज। उसके बाद इसने क्या बोला? किया डज नॉट हैव बनाना, किया के पास बनाना नहीं है, तो बनाना यहाँ आ गया, खत्म। फिर द फॉलोइंग डज ओमी है, ओमी के पास बनाना ही तो है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? 42 दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, 15 छिक्का 90। नहीं, ये नहीं, ये क्या है? 15 15 7, नहीं नहीं, नहीं, 15 माइनस करोगे तो इसमें से कितना आएगा? 27, 27 से 33 भी नहीं आ रहा। इससे करता हूँ ना, 6 6 प्लस 2 8। जैसे इससे डिवाइड करो 15, 42 को अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3 पचे 15 और 3 14, 14 को इससे डिवाइड करूंगा तो 2.8 प्लस 6 8.8। तो यही सी मैं 4 को 25 से डिवाइड करूँ, 25 से डिवाइड करूंगा 6.25 आ गया। हाँ, प्लस 9, 9 से 15.25 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है, क्या कहती है? ए प्लस मतलब दिस 46, 45 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10। 3 13, 13 दूनी 26, 26 और 9 19, 19 और 10 29 आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है वो देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल सोफा जो है वो बेड है, ठीक है, और नो बेड है वो चेयर है, ठीक है। उसके बाद सम चेयर आर टेबल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? सम टेबल आर नॉट बेड, कोई कुछ टेबल जो है वो बेड नहीं है, सही बात है। और उसके बाद सम बेड आर सोफा, सम बेड आर सोफा, ये भी सही है। सम चेयर आर सोफा, सम चेयर आर सोफा नहीं कह सकते। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 सेल्फ फॉलोज, 1 2 फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि कहके कि 100 100 25 250, 250 प्लस 400। ओके ओके, एक सेकंड ना, ये इसका कितना? 2.5 गुना है, फिर इसका 2.5 गुना है, नहीं नहीं, 400 डिवाइडेड बाई 36 दूनी 72। कुछ तो गड़बड़ है इससे। इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 150 आएगा, नहीं, इससे 200 माइनस करूंगा, इसका दुगुना करूंगा, इसका दुगुना 72। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। 6 1 7, ओ सॉरी, 400 एक 500 हो गया, 500 का आधा 250 आ गया। ऐसे 6 और 1 7 हो गया, और 7 3 10, 107 का आधा करूंगा तो 53.5। तो इन दोनों का ऐड करो, 9 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आना चाहिए, गलत। 6 4 10 5 आना चाहिए, 6 4 10 5 आना चाहिए। 8 1 9 10 1 कैरी, 8 4 12 1 13, 130 का डिवाइडेड बाई 2 65 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 9 जा 9 9 6 जा 54, 9 6 जा 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 दूनी 18 5 23 है 9, ये 9 टाइम चला गया। ये कितने बार गया है? 6 आया, 6 6 नहीं, 6 भी नहीं गया, 8 बार गया ना। 8 8 8 8 8 चौको 32, 3 कैरी, 8 8 3 24, 3 27, 2 कैरी, 8 2 16, 8 बार गया। ये कितने बार है? 7 बार गया, तो 6 बार। अब इसका 6 बार कितने बार जाएगा? 6 चौको 24, लास्ट में 24 होना चाहिए कि सही है। 6 कम 6 13 78। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस ए इज द फादर। तो वी फोर यू मत, वी फोर जेड मतलब क्या है? वी फोर जेड कहाँ है? वी फोर जेड, वी फोर जेड, वी फोर जेड मतलब वी इज द हस्बैंड ऑफ जेड, बी इज द हस्बैंड ऑफ जेड, ठीक है। जेड माइनस 3 मतलब जेड 3 बी, जेड 3 मतलब जेड इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू के बाद 5 मतलब 5 मतलब क्यू इज द वाइफ ऑफ यू, क्यू इज द वाइफ ऑफ यू, यू, क्यू इज द वाइफ ऑफ सबसे, क्यू इज द वाइफ ऑफ, क्यू इज द वाइफ ऑफ यू आ गया, ठीक है। और यू वन मतलब यू इज द फादर ऑफ, यू इज द फादर ऑफ एक्स, और एक्स टू मतलब एक्स इज द मदर ऑफ, नहीं, एक्स टू एक्स इज द मदर ऑफ डब्लू, और डब्लू फोर मतलब डब्लू इज द हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है। तो हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू वी? डब्ल्यू रिलेटेड टू वी एज, डब्ल्यू रिलेटेड टू वी एज, कुछ तो मैं गड़बड़ कर दिया हूँ क्या? वी फोर, देखो वी फोर जेड मतलब वी फोर जेड, वी इज दी हस्बैंड ऑफ जेड, ठीक है। जेड थ्री मतलब, जेड थ्री मतलब क्या होता है? जेड थ्री मतलब जेड इज द मदर ऑफ, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, करेक्ट है।
उसके बाद Q5 मतलब Q इज द वाइफ ऑफ U, U1X मतलब Q इज द फादर ऑफ X, सही सही है। उसके बाद X2U मतलब X इज द सिस्टर ऑफ U, वही मैं करूँ, X इज द सिस्टर ऑफ W, तो ये और W जो है तुम्हारा वो फोर मतलब हस्बैंड ऑफ वाई है, तो डब्लू तुम्हारा ग्रैंडसन हो गया, करेक्ट, ग्रैंडसन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, वही मैं कहूँ यार, ये ग्रेट ग्रैंडसन कैसे आ रहा है इस। ओके, पॉइंटेड टू अ फोटोग्राफ इन अ मीटिंग अ मैन सेल्जा सेट, इन अ मीट pointing to a person in a meeting a man, वर्ड्स नहीं, एक सेकंड ना, हिंदी में करते हैं इसको। एक बैठक में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए शैलजा ने कहा, एक व्यक्ति की तरफ, ठीक है, वह मेरे माता के पिता मेरे नाना के इकलौते पुत्र, मतलब मामा, मेरे मामा का पुत्र है। यदि शैलजा एक महिला है तो शैलजा की माता, मतलब मम्मी, ठीक है, उसकी, उस व्यक्ति के पिता से किस पर, बहन है उसकी, खत्म आंसर। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अपोजिट ऑफ द फोर, फोर के देखो 2 5, फोर टू का वन आ जाएगा, टू का अपोजिट वन, खत्म। फोर फोर देखो, फोर में ना वन आएगा ना थ्री आएगा, फोर के अपोजिट में सिक्स आएगा, खत्म आंसर। फोर के अपोजिट फोर ही दे दिया, वाह। सिक्स आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस लिक्विड दैट क्विकली evaporates into gas and is soluble in water, ठीक है। Polymer is used to make other chemicals can be formed in small amount when chlorine is added to water. Chloroform, okay, is used to make other chemicals and can also be formed in small amount when chlorine is added to water, सही है। CCl4 होता है, हाँ, तो both A and colorless soluble in water, तो both A and R true है, लेकिन R is not the collection information, ये सही है। नेक्स्ट, अब मुझे बस देखना है इसमें मैंने कौन सा छूट दिया है, 25 पूरे हो गए ना इसमें, ठीक है। आ जाओ क्वांट में, अब क्वांट में 24 मिनट, 24.5 मिनट के शुरू करना है। डी एंड डी डैश आर द डायगोनल्स ऑफ द रेम्बोस, ठीक है। जब डी/2 इज 14, तो डी की वैल्यू 28 आ गई, ठीक है, और डी इस डैश का मतलब आ गया 52, तो 14 हो गया और 26 हो गया, 14 26 मतलब 7 13, तो हाफ ऑफ द एरिया, हाफ इंटू, एक सेकेंड, ये 14 आया, करेक्ट, ये कितना आया, 26 आया, 13 7, 13 के स्क्वायर प्लस 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस 7 समझो 49, 9 9 जा 9 9 जा 9 9 18, वन कैरी, dash diagonals of the rhombus, then the area of the rhombus, हाफ ऑफ d1 d2 होता है ना, हाँ, हाफ ऑफ d1 d2, हाफ ऑफ d1 d2, हाफ इंटू d1 d2, d1 d2 मतलब कितना हो गया, 28 इंटू कितना हुआ, 26 दूनी 52, ठीक है, तो 4 से गया 13, 13 8 104, 10 कैरी, 26 और 10 36, 364 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, वो देख। यार बैग कंटेन्स 5 फेयर कॉइन्स, ठीक है, 5 फेयर कॉइन्स हैं, 1 हेड 1 टेल एंड 3 डबल हेडेड कॉइन्स, तो 5 फेयर कॉइन्स हैं, ठीक है, और 3 डबल हेडेड कॉइन्स हैं, ठीक है। 1 कॉइन इज चूजन एट द रैंडम एंड टॉस 3 टाइम्स, ठीक है, ऑल 3 टाइम्स रिजल्ट्स इन द हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूज, ओके, ठीक है, ये तो स्टैन वाला सवाल है। तो इसमें देखो, पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर मैं फेयर वाला कॉइन चूज कर रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8, और अगर मैं डबल हेडेड वाला चूज कर रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने मान लिया, तो ये आ गया 3/8, मैंने 5/8 से इसको चूज किया, 5/8 से इसको चूज किया पहले वाले को, और 5/8 से चूज किया इसमें, और इसमें क्या बोल रहा है, 3 हेड लाने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फेयर वाले की 1/2 का होल क्यूब, ये हो गया, ठीक, प्लस 5/8 हो गया, 1/2 का होल क्यूब हो गया, करेक्ट। उसके बाद 3 वाले में 3/8 इंटू 1, करेक्ट, ये कितना हुआ, 8 64, नीचे 64 आ गया, ऊपर 5 आ गया, प्लस 8 या 24, 5 64 8 आ गया, करेक्ट, 5 64, 24 5 29, 64 आ गया नीचे, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। उसने क्या बोला, जस्ट चूजिंग दैट द चूजन कॉइन इज डबल हेडेड, डबल हेडेड, अगर वो डबल हेडेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डबल हेडेड की 3/8 इंटू 1, 3/8 आ गया, 8 से 8 बार गया, 8 से 8 गया, 24/29, 24/29 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एस किलोमीटर, इट हेल्ड्स एट 5 जंक्शन फॉर द सेम पीरियड ऑफ, इसको बाद में करते हैं। अगला क्वेश्चन, द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ पर्सन आर 40/3 ऑफ द मंथली, इज मंथली सम, कितना, 300 से 4/3, मतलब एक्सपेंसेस तुम्हारा अगर 400 रुपए है तो सेविंग 300 रुपए है, ठीक है।
इफ इज मंथली इनकम इंक्रीज बाय मतलब टोटल इनकम 700 थी, 742, 420 रुपए तुम्हारी बढ़ गई। एंड हर मंथली इंक्रीजेस बाई एक्सपेंसेस कितने हो 1600, 160 बढ़ गए, 160 बढ़ गए तो 260, 260 तुम्हारा बढ़ा 300 पे, तीन 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 अट्ठे 24, 56 पॉइंट समथिंग। तो व्हाट वाज द यूनिट्स और देन देयर इज इंक्रीज। ओके 260 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, देयर इज इंक्रीज इन, इंक्रीज कितना हो गया 260, 260 की वैल्यू 1024 दे रखी है तुम्हें। तो बोल रहा है इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था 260 इंटू, एक सेकंड में कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 26, 60, 320, एक सेकंड ना, मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन एट 400, वो ज़्यादा है। ओके 300 तुम्हारा सेविंग, 700 ये, 1000 ये, 60, 600 रुपए आए, 600 के बाद इसने 7 चौका 28, 280 ये हो गए, तो 320 बचे। इस 320 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1024। तो 32 10 बार गया, 32 का 64, 64 पंचे, और 64 बार कितने बार जाएगा ये 64, 64 दूनी 128, 128 600 नहीं, 6 चौको 24, 4 चौको 16 नहीं, 6 पंचे 30 नहीं, 6 चौको 44, 4 क्यों नहीं, 8 चौको 48, 8 बार भी नहीं जाएगा, 8 16, 64 इंटू 16 16, 16/5, 32 से मतलब जीरो से जीरो गया, 32, 32 का स्क्वायर है ये, हाँ ठीक है, 16/5 आ गया। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, इनिशियल एक्सपेंडिचर था मेरा 5 गया 25, 25, 700 इंटू 16/5, यही है, 5 से ये गया 25 बार, 25 चौक 100, 7 चौक 2800। व्हाट वाज द इनिशियल, एक सेकंड, इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ दिस इन द सेविंग, 320 की वैल्यू अगर मेरी 104 एक 1024 है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, व्हाट वाज इनिशियल एक्सपेंडिचर 700 रुपए थी, खत्म, ये हुआ, जीरो से जीरो गया, करेक्ट। 16 दूनी 72, 16 एकम 16, 16 6 96, 16 4 64, 2 से गया 32 बार, जीरो, 7 दूनी 14, 7 21 22, 22 से 40 था। मैं भी क्या करता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, द वैल्यू ऑफ द कॉट 78, कॉट 78 और कॉट 47, कॉट 47, कॉट 55, एक सेकंड ना, 8 5 13 1 कह रही, नहीं नहीं ये भी नहीं हो रहा, कॉट 55 प्लस दिस, इन सबका ऐड करना जरा, 8 78 डिग्री प्लस 47 प्लस 55, इसको ऐड करो जरा, 8 7 15, 15 5 20, 2 गहरी, 7 4 11, 11 11 5 16 और 180, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 10। इनको चेंज कर दूं अगर मैं इन सबको चेंज कर दूं उसमें 90 डिग्री वाले में, तो 10 10 10 10 10 10 10 10 a प्लस 10 10 a 10 b 10 b 10 b प्लस दिस इज इक्वल टू 10 a प्लस 10 b प्लस 10 प्लस c, इसका आंसर 1 है ना, हाँ इसका आंसर 1 है, 1 1 1 1 1 1 प्लस 10 a 10 b 10 a इंटू 10 b प्लस 10 b 10 b, सही है, ये सही है। नेक्स्ट अगला, अगला क्या कह रहा है, इसको बाकी मार्क पर भी कर देते हैं बाद में देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x एंड द पॉसिबल मिनिमम वैल्यूज ऑफ x इफ दिस 3300 800 x 380 x 67 इज डिविजिबल बाई 3, तो 8 3 11, 8 और 3 11, 11 7 18, 18 6 24, ये तो खत्म। तो मिनिमम वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू और पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 9 9 9 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस एक सेकंड रुक जाना, नीचे से सॉल्व करता हूँ ना मैं सीधा सीधा, 1 + 6 माइनस क्या हो रहा है, 1 + 6 अपॉन माइनस का 5 आया, इसको लिख सकता हूँ 1 - 6/5, ठीक, इसको लिखूंगा इससे तो माइनस 1 - 6/5, 5 से 5 गया, माइनस का 1/5 आ गया, ये आया इतने नीचे का आया 1/5, ऊपर चला गया 1 + 5 बच गया 6 हो गया, 6 से 6 चला गया 0 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन हेरिटेज रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट ए अलोन वुड कंप्लीट इंट्रिकेट वुडन कार्विंग इन 30 days वर्किंग 5 hours a day, ठीक है, और बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 20 × 6, तो 150 घंटे में ये कर सकता है, ये 120 घंटे में कर सकता है, टोटल काम मान लेता हूँ 1800 घंटे में होता है, तो ये कितने बार जाएगा 15 12 12 15, करेक्ट, ठीक है, ये 0 गया, ये 15 12 180, ठीक है, ये हो गया। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days एट their respective hours, एट their respective hours, 8 दिन तक, 8 दिन तक मतलब कितना, 8 दिन तक काम किया इसने उसी स्पीड,
एक 8 दिन तक तीनों 12 सत्ते 27 इंटू 8 बार किया, 8 घंटे काम किया। 27 इंटू 28 8, ये कितना हुआ? 8 सत्ते 8 समझो 56, 5 कैरी। एक सेकंड ना, 9 9 3 8 3 24। क्या कर रहा हूँ मैं? 8 समझो 56, 5 कैरी, 8 दिन 16 16 16 5 21 216 हो गया। हाँ ठीक है, 216 हो गया। 1800 से जरा 216 माइनस करना, कितना आएगा? ये आएगा 84। और ये 17 में से 2 गई 15, 15 84 आ गया। ठीक है, उसने क्या बोला? बी ने डबल कर दिया इस डेली आवर्स। बी ने डबल कर देगा तो बी की एफिशिएंसी 30 हो जाएगी। ठीक है, और ए कंटिन्यू एट 5 आवर्स। 8 कंटिन्यूड एट 5 आवर्स। ए ने ए का अपना वही रखा है एफिशिएंसी 30 42। 42 से डिवाइड करो इसको, 3 से डिवाइड करोगे 3 से 14 बार जाएगा, 3 से 5 और 28। ठीक, ये आया। उसके बाद 2 से डिवाइड करो, 2 से 7 बार जाएगा, 2 से 26 264। अब 7 तियां 21, 7 तियां 21। हाउ many more days will they need? They did work together for 8 days at their respective hours. यार मैंने क्या कर दिया? कुछ गलती कर दी क्या? ए ने 30 दिन काम किया, 5 150 घंटे लगते हैं उसको, करेक्ट। और इसको लगते हैं 20 छिक्का 120 घंटे। 15 12 27 हो गया। 27 के बाद दे वर्क टुगेदर बट देयर, तो 8 8 समझे 56, 5 कैरी, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 माइनस किया मैंने इसमें, 17 में से 2 गई 15, 15 से 84 आ गए। ये क्या, इसने क्या किया? बी ने डबल कर लिया इस डेली में, बी में डबल करेंगे तो 30 हो गया। 30 और ये इसने क्या किया? ए कंटिन्यूड इज 5 आवर्स, कंटिन्यूस एट 5 आवर्स। तो ए ने अगर वही रखी अपनी एफिशिएंसी 30 12 42, 42 से काटा इसको 3 14, 3 5 15, 28 3 84। ठीक है, उसके बाद 2 से काटा 42 के बाद, 3 से 42 14, 43 42 14 आ गया। ठीक है, 2 से काटा 264, 264 डिवाइड बाई 7, 7 तियां 21, 7 तियां 21 54 बचा, 7 8 जा 56। लमसम 4 डेज लगेंगे, 4 डेज अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा 3.8 4 डेज। बाकी इसको मार्क पर भी करते हैं, बाद में देखते हैं। इफ लाइन एक्स and x axis meet at point x axis है अगर मेरा, तो x को एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 तो एट x इक्वल टू 5 0 पे मिलते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, तो 5 पचम 25 आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ थी इजी क्वेश्चन था ये तो। इफ a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस, then a क्यूब प्लस b क्यूब c प्लस c क्यूब इज इक्वल टू दिस। इनको ऐड करोगे तो ये 0 हो गया, 3 टाइम्स ऑफ abc ये आ गया, तो 3 टाइम्स ऑफ abc, 3 टाइम्स ऑफ इंटू ए इक्वल टू 9 27, 27 इंटू 81, 81 इंटू 6, ये सही है। ये नेगेटिव का पॉजिटिव में यहाँ से जाएगा, सही है। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 36, 2a 9 दूनी 18, 18 18 और 3, नेक्स्ट सेकंड ना, अगर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 36 है, 2a भी अगर 48 है, ओके ठीक है ठीक है। देखो 2a का स्क्वायर 4 है, 36 का स्क्वायर कितना होगा? 36 का स्क्वायर 36 इंटू 6, 6 3 18, 216, 216 इंटू 6 1296, 1296 तुम्हारा आया। ठीक, ये आया 1296 तो मेरा होल स्क्वायर आ गया। इसके बाद इसने क्या किया? 2a4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab से माइनस करना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ओनली ओनली ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है इफ ए इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द शॉपिंग, अगर ए की हाइट जो है तुम्हारी 4 मीटर है और टॉल वाई है, और ये 31√3 तुम्हारी अवे फ्रॉम द शॉपिंग मॉल है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द शॉपिंग मॉल इज 60 डिग्री। 60 डिग्री मानता है वो। 60 डिग्री अगर ये है तो ये 31√3 ये है तो ये 31 हो गया। 31 4 35.2। तो हाइट ऑफ द शॉपिंग मॉल बता दो कितना आएगा? एक सेकंड, 31 या 93, 93 4 97.2, 97.2 आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द रेशियो इन द वॉल्यूम, if the ratio in the volume and CSE of the cylinder, वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन CSE कितना होता है? CSE कितना होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू 15/32। करेक्ट, यही है ना? तो पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, एच से एच गया, तो r/2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 15/32, डेट इज आर की वैल्यू 15/16। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस बता दो 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, 2 बाई इंटू 7 इंटू 15/16। करेक्ट, 11 चौको 44, 11 बचा, 4 चौको 16, 4 बचा, 7 चौको 28 हो गया, 165 हो गया, 165/28 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से वो देखो। हाउ मेनी बॉल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना है? 4/3 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब कितना है? 12 का क्यूब। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद है 6 रेडियस का, 6 रेडियस की बॉल बननी है, तो 4/3 पाई आर क्यूब कितना है? 6 का क्यूब, ये हो गया।
पाई से पाई गया, 2/3 से ये 2 बार गया, 6 का क्यूब 6 का क्यूब 6 का क्यूब, ये कितना बचा 8 बचा, 8 बचा 4 आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे से, अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन 75% मिल्क, मान लेता हूँ 100 था, 75 लीटर मिल्क था, 25% वाटर था, ठीक है, 25 वाटर था, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इज 3/4, 3/4 है मतलब 4 3 7, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 70 लीटर पानी मान लेता हूँ, 70 लीटर स्टार्टिंग में था, करेक्ट, 70 लीटर अगर स्टार्टिंग में था मेरे भाई, स्टार्टिंग में था 70 लीटर, तो नहीं 70 नहीं है, मैं 28 लीटर मानता हूँ, अगर 28 लीटर मेरा स्टार्टिंग में था, तो तुम्हारा इसका तीन 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 1/4 7 7 21 21 लीटर मेरा पानी था, और 21 लीटर पानी था, और 7 लीटर हमारा पानी था, 21 लीटर मिल्क था, ठीक है। उसके लास्ट में कितना, 4 3 7 चौको 28, 4 3 12, 4 चौको 16, तो 16 ये हो गया, ये हो गया, इसमें से कितना 21 का 12 कितना रह गया, 21 इंटू x/y इज इक्वल टू 12, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/21, 3 चौको 12, 3 सत्ते 4/7, 4/7 निकाला तुमने, खत्म, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या करे, कन्वर्ट 9 9 9 10 इंटू हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल 9 9 9 9 9 9 10, एक चीज बताओ मुझे, इसका सिंपल से बताना, 9 9 9 9 9 10, इसको इसको बाद में करते हैं, मुझे मैंने पढ़ा नहीं, हाउ मेनी डिफरेंट एक्यूट एंगल scalene triangle, how many different acute angle scalene triangle can be found such that the perimeter is 19, इसको भी बाद में करते हैं। अगला 62, कोफिशिएंट ऑफ द रेंज, कोफिशिएंट ऑफ द रेंज क्या होता है, रेंज कोफिशिएंट अपॉन द रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है यार, ये कितना होगा, सबसे ज्यादा क्या है 109, सबसे कम क्या है 62, 9 में से 2 गई 7, 47 आया, 47 आया मेरा, उसके बाद मुझे इसको किससे डिवाइड करना है, 24, 0.47, 47 नहीं 47, अब इसको 8 5 2 7, 5 2 7 1 8, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 24 6 30, 3 करी हो गया, 6 3 9, 9 8 17, 17 17 9 26, 26 और 10 36, 36 और 7, 36 और 7 43, 43 और 9 52, इस कितने हैं 3 3 6, 6 से डिवाइड करोगे 2 3, कुछ गड़बड़ है क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं यार, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट में दिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आता है क्या, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज डिवाइडेड बाय किससे, 3 3 6 6 0 दिस 109 माइनस सबसे छोटा कौन सा है 62, 9 से 2 में 47 ही तो आया, 47 के बाद क्या किया मैंने, पता नहीं, इसको भी बाद में करते हैं। अगला एच एल इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, एक सर्किल है तुम्हारा, ठीक है, उसकी एच एल डायमीटर है, एच एल इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड जी जो पॉइंट ऑन सर्किल सच दैट के जी इज परपेंडिकुलर टू एच एल, क्या है k such that g is a point on the circle such that kg is perpendicular to hl, ठीक है, where k is the point on hl, ठीक है, k ये पॉइंट आ गया on hl, ठीक है, एंड hl, ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21, ये 21 ये 21, ठीक है, 21, एंड gl इज तुम्हारा gl की वैल्यू 36 दे रखी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ kl, ओह नाइस 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 नाइस, ये kl की वैल्यू कितनी होगी, kl, k क्या है मेरे, k इज अ पॉइंट ऑन hl, ओके, द रेडियस ऑफ द सर्किल क्या है तुम्हारी, इसको भी बाद में करते हैं यार, ए डिस्ट्रीब्यूशन हैज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.36 माइनस का वो भी, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा कितना है 15, मीन तुम्हारा कितना है 82, मीन माइनस मोड है, तो मोड पूछा है, मोड निकाल लेता हूँ पहले, मीडियन वैल्यू निकल आएगा, इंटू 100, 100 मान लेता हूँ मैं, 5 3 15, 5 20, 3 गया 108, 1.8 माइनस का आया, ठीक, ये इसका 20 है, वन में 20 चला गया, 54, 0.054, इससे इसको माइनस किया,
कोफिशिएंट ऑफ इसका नहीं, मीडियन माइनस देखो मीन टू मीडियन थ्री मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड होता है, करेक्ट। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको माइनस करता हूँ, 3 मीडियन माइनस मीन, 3 मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीन, करेक्ट। तो इसको मोटा मोटा कह दूंगा तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड लिख देता हूँ, मीन माइनस 82, मीन कितना है 80, 82 माइनस एक्स अपॉन इस कोफिशिएंट डिफरेंस कितना है 36, 36 इक्वल 36 अपॉन 100, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 15 इंटू 100, ये है इज इक्वल टू दिस है। 15 ले आओ इधर और 100 नीचे ले आओ, तो 3 से तो पहले से काटो, 12 माइनस का 12 इंटू 15 180 आएगा पहले तो, 180 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये आया। नेगेटिव का चल ही रहा है अभी, नेगेटिव का चलेगा तो 0 से 0 गया, तो ये बचा 1000, 0.018 माइनस का चल रहा है। ये भी इधर आएगा तो 82 माइनस का, नहीं इसको x, यहाँ x ले आया, x माइनस 82 इज इक्वल टू 0.018, ये इधर गया 82.18, 83.8 आएगा नेक्स्ट, 83.8 सही है। अगला, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड परसू प्रिजम्पशंस आर पॉसिबल, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, एक सेकेंड, कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो P लिखो, R लिखो, E लिखो, S लिखो, इसके बाद U लिखो, उसके बाद क्या लिखना, M लिखना, P फिर से आ गया तो एक और P लिख दो, उसके बाद क्या T, फिर से T नहीं आया, U फिर से आ गया, U यहाँ लिख दो, उसके बाद क्या लिखना, O आ गया, U फिर से आ गया, उसके बाद ऐसे एक बार और आ गया। तो कितने वर्ड हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 2 8, 6 3 3 6 6 2 8 और 8 और 4 12, 12 फैक्टोरियल तो सीधा आ गया, 12 फैक्टोरियल, ठीक। उसके बाद डिवाइडेड बाई कितना, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको मैं, हाँ, इंटू 12, ये कितना है, ये कितना है 3, 3 फैक्टोरियल, दो दूनी 4 थी, 12 अपॉन 2, 11 फैक्टोरियल इंटू 12 अपॉन 3 दूनी 6 इंटू 4 इंटू 4, तो 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 10, क्या कर रहा हूँ मैं, 12 फैक्टोरियल है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 बचा, 2 बचा, 11 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता, इसको 10 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, 55 इंटू 9 फैक्टोरियल सबसे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू दिस इन 1.5 साल एंड 4.5, तो इसको डिवाइड करो पहले, 5080 माइनस करो इससे 4790, 0 18 में से 8 की 9, ठीक है, अच्छा 49 290 तुम्हारा कितने साल का है, 3 साल का, तो 3 साल का अगर मेरा ये है तो 1.5 साल का कितना होगा, 3 साल का मेरा ये है तो 1.5 साल का 145, 145 इसमें से माइनस करोगे कितना, 45 लास्ट में आएगा, और एक जाएगा तो 461, 46 नहीं 45, 45,790, 6 सही है। ये नहीं, ये प्रिंसिपल है मेरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है, क्या की आती है, ये कॉस्ट ऑफ 5 स्मॉल पैक्स ऑफ ईच पैक कंटेन 5 पेन, ये 400, कॉस्ट ऑफ 5 स्मॉल 5 25, 25 चौके मतलब एक पेन की वैल्यू 16 है, कॉस्ट ऑफ 8 लार्ज पैक ऑफ पेन्स ईच पेन 64, 64 की वैल्यू मेरी 9216 है, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 12 बचा, 8 एकम 8, 11 अट्ठे 4 बचा, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 8 से एक बार और डिवाइड करो, 8 3 8 चौको 32, 8 चौको 32 डिवाइडेड बाई 14.4 ये है एक, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द लार्ज पैक ऑफ फोन, 16 का 160, 160 की चीज 9, 10% का उसका वो मिल गया। अगला, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस,
ओके, तो 12 को 420 से डिवाइड करो। 12 तीन चौको 12 3 140 124 35, करेक्ट 35 ही तो आएगा। 35 तो नहीं 70, हाँ ठीक है 35 आ गया, एक्स की वैल्यू 35 आ गई। 35 और यहाँ से कितनी आएगी 35, 35 गया तो 12, 12 इंटू 12 60, वहाँ 12 37 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अगला मेरे से कह रहा है पर्सन ए ने क्या किया, पर्सन ए ने मेरा स्टार्ट किया कोई बिजनेस, इन्वेस्टिंग कितना 20,000 रुपए, ठीक है। आफ्टर 14 मंथ्स बी ज्वाइंड ए बाय इन्वेस्टिंग 18,000 रुपए, ठीक है। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम बी एंड सी, फ्रॉम बी इसने कितने दिन बाद, इसने 14 महीने बाद, ठीक है। इसने कितने 18 मिनट बाद इसने 30,000 के साथ किया। एट द एंड ऑफ ईयर तो 24 महीने के लिए इसने किया, इसने 10 महीने के लिए किया, इसने 18 6 महीने के लिए किया। ये 4 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, 3 खत्म, 6 3 18, 180 आया, ये 180 आया, और 24 24 दूनी 20, 24 दूनी 480 आया। ये जीरो से गया, ये जीरो से गया, ये जीरो गया, ये 3 तिचंग 18, तिचंग नहीं 6 3 18, 6 3 18, 6 8 8 3 11, 11 3 13, तो टोटल प्रॉफिट 8 3 11, 11 3 14, 14 एकम 14, 14 42, 3100, 3100 टोटल पेयर ऑफ 3 3 6 6 3 18, 186। अल्फा एंड बीटा इक्वेशन में अल्फा बीटा, अरे यार अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 5 आ गया, 3 और 2 आ गई, 3 और 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 3 और 2 आ गई यार, बट फालतू के सवालों में टाइम लगा दिया। I don't use what's no, I don't only use कितने 25 सवाल इसमें किए थे, 25 इसमें 25 20 सवाल इसमें, और 18 सवाल इसमें किए थे, 22 सवाल इसमें किए थे, 18 22 40, 40 और 25 65 एक 85, 85 75 150, 140 के आसपास, 148 के आसपास मार्क्स होंगे मेरे हिसाब से मेरे इसमें। 133.5 बहुत कम नंबर आए हैं यार। जनरल इंटेलिजेंस में कितने नंबर हैं 50, ठीक है ओके। और जीएस में 17.5 नंबर है, क्वांट में 30.5, 3 गलत हो गए मेरे, और इंग्लिश में कितने हैं 5 गलत हो गए हैं, 19 सही है, ठीक है। इंग्लिश में तो ठीक है 5 एक गलत किया, ठीक है वो 5 गलत होते हैं, 17 गलत हो गए यार, बहुत गलत हो गए। 133.5 बहुत कम नंबर है यार। यार मैथ्स में वो वाला सवाल हो जाता लास्ट में, और ये 3 जो गलत, 25 थे 7.5, 7.5 और 2 9.5, साढ़े सात इसमें ऐड करो जरा, कितना होगा 140 41 41 तो 143 44 45 नंबर हो जाते हैं यार। बाकी क्वेश्चन पेपर लेंदी था, देखो 10 10 20 मिनट इसमें लगे, 14 मिनट में ये पूरी हो गई, 25 पूरे सही है इसमें। खैर यार मैंने वो मैथ्स मैथ्स में वो जो एक तो ये वाले स्टार्टिंग के सवालों में थोड़ा सा फालतू का समय दे दिया यार। ज्योमेट्री वाला सवाल जैसे किया, स्किपिंग करना पड़ेगा यार। तो आप लोग भी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए, बताइए आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या आया है। मेरा तो काफ़ी गंदा आया, मेरा 133.5 आया, बल्कि मेरा 145 के आसपास आना चाहिए था करंटली, अगर जैसा का पेपर आया उस हिसाब से, क्योंकि मैथ्स में मेरे बहुत कम नंबर आए यार, मैथ्स में दिस इज नॉट बैड। आई एम कम से कम 40 प्लस होने चाहिए थे नंबर यार, ये 7.5 नंबर ये, और वो 2 9.5 40 नंबर इसमें आ जाते, सीधे 10 नंबर बढ़ते, 10 नंबर बढ़ जाते, 143.5 हो जाते, ठीक है। तो आप लोग भी ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए, बताइए आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या आया है, मेरा तो बहुत गंदा आया। तो और कमेंट करके अपना सेक्शन वाइज स्कोर जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।